लॉस कैलकुलेट करना। नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। एक्चुअली बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है। सो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बुक कीपिंग है, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो जो हमने अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग पढ़ा था, दैट रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट द बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी का एक छोटा सा हिस्सा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स यहाँ पे मीनिंग में लिखा है, बुक कीपिंग इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन एन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स when we record the transactions of a particular business, we will maintain a proper systematic way. We will record this transaction in sequence way, and the monetary events are recorded in business. Only the monetary events were recorded in business. Non-monetary events were not taken into consideration. So in case of bookkeeping is, it is a part of or subset of accounting. Clear? So if we write it, if this is accounting, then bookkeeping, it is a part of bookkeeping. Accounting under this bookkeeping means it is a subset of accounting. Clear? So now the difference between accountancy and bookkeeping, कुछ differences है. First of all, meaning bookkeeping is an activity of recording the financial transactions. It consists of, that means bookkeeping consists of only recording phase of accounting, but accountancy is an orderly recording and reporting the financial affairs. Accounting means not only book recording, it consists of reporting of financial affairs. Reporting needs the rest of the things. Reporting consists of calculation of profit loss, each and every aspects of business activities. So accountancy is a broader concept and bookkeeping is a narrow concept. Now what is it? It is a subset of accounting. That means bookkeeping is a part of accounting, and accounting, it is regarded as the language of business. Accountancy is also called the language of business because it provides the detailed information of a business to the interested parties. The next point is decision making. Decision making is not possible only through recording. It is not possible to take any kind of decision, because for decision we need a detailed information, and detailed information is possible in case of accountancy only. That's why bookkeeping, in case of bookkeeping, decision making is not possible through bookkeeping, but in from accountancy we can take various kinds of decision. uh, After that, preparation of financial statement. So bookkeeping consists of recording part only. That's why financial statement through which we can prepare, calculate profit or loss. So from bookkeeping it is not possible to prepare financial statements, but in case of accountancy, after recording, summarizing, classification, we will prepare financial statements through which we can calculate the profit or loss, and we can find out the overall financial position of a business. So financial position, financial statement preparation is possible in case of accountancy, but it is not possible in case of bookkeeping. Now what are the advantages or merits of accounting? क्या क्या advantages हैं? फर्स्ट एडवांटेज, इट इज़ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. पहला एडवांटेज, फ्रॉम अकाउंटिंग, through accounting we can record each and every transaction, that means the monetary events of a business in a systematic way. ठीक है, सो अकाउंटेंसी से हमें कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो सेकेंड एडवांटेज है कि through accountancy you can calculate the profit or loss of a business. The main objective of a particular business is to earn profit. So to know about the profitability of the organization, we need to prepare accounts. So from accounts only we can calculate the overall profit or loss of a particular business. Third advantage, it is exhibition of total financial position. Now what is financial position? Financial position, let me give you an example. Suppose किसी भी एज ए हम लोग सोसाइटी का ले लेते हैं. सोसाइटी में हम लोग कैटेगरी जो है लोगों का,
वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में क्या क्या आता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। किस बेसिस पे होता है, उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास है, ये डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा एसेट्स, संपत्ति है, ठीक है, उस संपत्ति के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको डिवीजन करते हैं। जिनके पास बहुत सारा संपत्ति है उनको हम अपर क्लास में रखते हैं, जिनके पास कम है उनको हम लोअर क्लास में रखते हैं, जिनके पास एकदम नहीं है उनको हम लोअर क्लास। सो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी। सो बिजनेस का भी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे पॉसिबल होगा जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग जब बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। सो बैलेंस शीट consist of two things, one is assets, another one is liabilities. Through assets and liabilities we can measure the financial position of a particular business organization. So this assets मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी या liabilities मतलब किसी को फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना बाकी है, उसी को liability बोलते हैं। That means debt जिसको बोलते हैं। तो through these two, assets and liabilities, we can measure the financial position of a particular business organization. Then after that, evidence in legal matters. Evidence in legal matters means accountancy provides the evidence if we face any kind of legal activities, if we need any kind of legal evidence. So accountancy provides that, अकाउंटेंसी एक्ट एज एन एविडेंस इन केस ऑफ लीगल मैटर्स, ठीक है। कोई भी लीगल मैटर में अकाउंटेंसी प्रूफ के हिसाब से काम करता है, ठीक है। देन हेल्प्स इन टैक्सेशन। सो हम लोग को पता है कि बिजनेस में बहुत सारे तरीके का टैक्सेशंस एक्टिविटीज़, टैक्सेशंस होते हैं। जैसे कि अगर पुराना टैक्सेशन सिस्टम ले ले तो सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे तरीके का टैक्स होते थे पहले। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, टैक्स को जो टैक्स फॉर्म है वो थोड़ा चेंज हो गया है जीएसटी आने के बाद। जो अभी सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वही चीज़ें आजकल जो न्यू टैक्सेशन सिस्टम में है बिजनेस के लिए वो होते हैं। उसके साथ कुछ कॉरपोरेट टैक्सेस, जो बड़े बिजनेस है उनके लिए कॉरपोरेट टैक्स होते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब अभी भी लागू है, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन कैलकुलेशन है, ये टैक्सेशन कैलकुलेशन भी पॉसिबल है ओनली थ्रू अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स अगर हम प्रॉपरली बनाएंगे तभी जाके हम लोग जीएसटी हो या बाकी पुराना सिस्टम का हो, कोई भी टैक्सेशन सिस्टम हो, टैक्स कैलकुलेशन इज पॉसिबल ओनली इफ वी मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंटेंसी से हमें टैक्सेशन में भी हेल्प मिलता है। देन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारा जो बिजनेस का जो एसेट्स है, वो एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है अकाउंटेंसी, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स जो बनाते हैं वो अकाउंट्स को हम सिर्फ एक पर्टिकुलर साल के लिए नहीं बनाते, वो हम सीरियली बनाते रहते हैं, ठीक है। सो लास्ट ईयर हमारे पास कितना एसेट था, इस साल कितना एसेट है, वो हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कोई एसेट हमारा क्या डिटोरेट हो रहा है, कि चोरी हो रहा है, पिल्फरेज हो रहा है, ये हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो एसेट है उस एसेट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें तो, ठीक है। सो ये भी पॉसिबल है थ्रू अकाउंट्स। एंड आफ्टर दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यूज़र्स के लिए है। जो हमने थोड़ी देर पहले जब हमने मीनिंग पढ़ा था, तो रिपोर्ट देम टू यूज़र्स, जो यूज़र्स है अकाउंटेंसी का, जो अकाउंटेंसी को यूज़ करते हैं, वो लोग अकाउंटेंसी को यूज़ करके अपना अपना पर्टिकुलर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो डिसीजन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटेंसी एक्ट एज ए लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस। और अकाउंटेंसी से हम लोगों को पर्टिकुलर बिजनेस का इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है, और थ्रू दैट इंफॉर्मेशन वी कैन टेक डिसीजंस, ठीक है।
सो डिसएडवांटेज, जहाँ पे एडवांटेज होगा वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होगा। कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज है रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन ओनली। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, यही उसका डिसएडवांटेज हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ भी है जो अकाउंटेंसी में इग्नोर किया जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल बोला था इफिशियंसी ऑफ ए वर्कर। सपोज एग्जाम्पल ले लेते, दो वर्कर है ए और बी। वर्कर ए जो है वो अच्छा काम कर रहा है वर्कर बी से, बट हम लोग इसको मेज़र नहीं कर सकते कितना वो रुपये का ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसीलिए उसको अकाउंटेंसी में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि एक डिसएडवांटेज अकाउंटेंसी के लिए है। सेकंड डिसएडवांटेज है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स। ये जो पर्सनल जजमेंट है, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में इसको बताता हूँ। यहाँ पे अकाउंटेंसी में हम लोग को कुछ मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड्स मिलेंगे। अल्टरनेटिव मेथड्स का मतलब ये होता है कि सपोज दो तीन मेथड हमारे पास है, उसमें से हमें कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, कौन सा चूज़ करेंगे हम लोग? कौन सा चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेटर है, जो लोगों के लिए बेटर है या दूसरे पार्टीज़ के लिए बेटर है, वो उसको हम नहीं चूज़ करेंगे। जो मेरे लिए बेटर होगा उसी को मैं चूज़ करूँगा। तो इसमें क्या हो गया? इसमें आ रहा है पर्सनल जजमेंट। जहाँ पे पर्सनल जजमेंट आता है वहाँ पे बायसनेस आ जाता है। ठीक है, मतलब आने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो बायसनेस आना, अगर कहीं पे बायसनेस होता है तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया। तो अकाउंटेंसी में वो बायसनेस पॉसिबल है, क्योंकि अकाउंटेंसी में कहीं कुछ मेथड्स है कैलकुलेशन में, जैसे डेप्रिसिएशन ले लो, गुडविल ले लो, या ऐसे और भी आइटम्स है कैलकुलेशन में हम लोग को मेथड्स मिलता है। वो मेथड्स में से हमें कोई एक को चूज़ करना है, तो उस चॉइस के टाइम हम लोग का बायसनेस हो सकता है। मेरे हिसाब से जो बेटर होगा मैं वही चूज़ करूँगा। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हम लोग का एक अकाउंटेंसी का एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंसी का एक रूल है कि अकाउंटेंसी में जब हम लोग किसी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, मतलब जितने में उसको एक्वायर किया था, जितने में उसको परचेज किया था, उसी के बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने में तुमने उसको परचेज किया था। तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिसएडवांटेज किस तरीके से है? सपोज 2015 में मैंने कोई एक एसेट खरीदा था, आज है 2020, दैट मीन्स आफ्टर 5 years वी हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट 2015। मतलब 2015 में उसका जो वैल्यू था और 2020 में जो उसका वैल्यू है वो सिमिलर नहीं होगा। उसका वैल्यू आज के दिन में कहीं ज़्यादा हो सकता है, बट हमारे पास एक रूल है अकाउंटेंसी में कि उसको तुम्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करना है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया अकाउंटेंसी का। देन प्रोवाइड पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन। सो ये सबसे जब इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो तुमको एट द एंड ऑफ द ईयर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, आज के दिन में अगर जानना है, मिडिल में कहीं किसी भी डेट पे अगर जानना है तो वो पॉसिबल नहीं है। वो अकाउंटेंसी में प्रॉफिट लॉस, एसेट्स लाइबिलिटीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन तुमको वेट करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द ईयर। साल जब ख़त्म होगा उस दिन सब अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तब जाके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, then after that number of accounting principles. The next limitation is accountancy. In accountancy there are a number of rules and regulation, number of accounting principles are there. So for a layman it is not possible to prepare accounts. So one must be sound in accounting principles for before preparing द अकाउंट्स। सो हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, वो पहले जानना पड़ेगा जब जब जाके अकाउंट्स बना सकते। सो अप टू दिस फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट chapter 2 from accountancy. So that's all for today, thank you.